Good morning, everybody. How are you? Is everybody happy? Happy as well as safe at your homes. मेरे प्यारे बच्चों, myself SP sir, full form you know already, शिवप्रसाद सर, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मतलब आज का डेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10th अक्टूबर 2020। Dear students, in today's 11th business studies lecture, my dear students, in today's lecture I am going to start a new chapter number 8. It is from your part B of business studies. By the way, already your part B has started and one more chapter I have finished. In my last video lecture, chapter number 7, I finished. Chapter number 7, that is sources of business finance. Actually, your part B of business studies starts from chapter number 7 itself. As you know very well that your syllabus of business studies is divided in two parts, part A and part B. So in part B you are having total 6 chapters and in part B 4 chapters, 7, 8, 9 and 10. So 7th one I have completed. So today we are going to start 8th one. So let me write over here chapter number 8, that is emerging modes of business. Dear students, small business enterprises I am going to start. Small business enterprises. Small business and enterprises, your chapter number 8 from your business studies, part B. Part B का नाम क्या है? Finance and Trade. From there, chapter number 8, that is small business and enterprises. Small business and enterprises. Small business and enterprises. So, dear students, once again welcome. Why I am saying once again welcome? Because we are going to start a new chapter. Chapter number 8, that is small business and enterprises. So once again welcome in the 8th chapter of your business studies part B. Part B का 8th chapter. Dear students, जैसे कि ये चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, तो आज तो ये फर्स्ट लेक्चर है, आज शुरुआत हो रहा है टॉपिक का। तो आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर्स, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से कोई ना कोई क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये आता है, व्हाई सीक एन एंटरप्राइज? बाय द वे, ये सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए है, हमारा चैप्टर को समझने के लिए है। चैप्टर का नाम लिख दिया है पहले मैंने, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो ये पहला कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए कि क्या कंसेप्ट है, फिर धीरे धीरे ये
चैप्टर में हम लोग एंटर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट our discussion with the first question, that why seek an enterprise? Why seek an enterprise? Why seek an enterprise? Why seek an enterprise? Yes, dear students. So आप ऐसा बोल सकते हैं कि आज हमारा टॉपिक टू बी डिस्कस्ड यही है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, वाई सीक एन एंटरप्राइज। अब ऐसा कोई टॉपिक आप आपका एनसीईआरटी बुक में ढूंढने को जाएंगे तो शायद आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, उसमें आप वर्ड टू वर्ड ढूंढेंगे। तो मैंने बताया आपको पहले ही कि आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर नंबर 8, दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो पहला ये चैप्टर को समझो, कंसेप्ट को समझो पहला, और उसको समझने के लिए मैंने एक टॉपिक लिया है बोर्ड पर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, वाई सीक एन एंटरप्राइज। माय डियर स्टूडेंट्स, एंटरप्राइज और वी कैन से दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस, ये सबका मतलब एक ही है, यूज़ अलग अलग है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि किसी भी एंटरप्राइज का या किसी भी एंटरप्रेन्योर का ज़रूरत क्यों होता है? एंटरप्रेन्योर्स सीक एन एंटरप्राइज बिकॉज इट रिजल्ट इन क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय, comfort and peace. Every human being looks for world full of happiness, joy, comfort and peace. In other words, we can say that like this. Attend here please everybody. Why seek an enterprise? So entrepreneur, देखिए अब ये प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका भी अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर और मैं बोलता हूँ एंटरप्रेन्योर्स, एक ही चीज़ है। सो एंटरप्रेन्योर्स नीड एंटरप्राइज। हमारे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा क्या है? वाई सीक एन एंटरप्राइज। सो एंटरप्रेन्योर्स need enterprise. Why they need enterprise? To provide goods and services to the society. जरा आप सोचिए कि अगर ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते, अगर ये एंटरप्राइजेस नहीं होती, तो आज जो आपका वांट्स सेटिस्फाई हो रहा है बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, क्या ये सेटिस्फाई होता था? नहीं होता था। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब क्या है? दीज एंटरप्रेन्योर्स थ्रू देयर एंटरप्राइजेस दे satisfy the needs of the society by providing different goods and services which are desired by the society. Because of these entrepreneurs and their enterprises, there is a joy, there is happiness, there is a smile on everybody's face. I hope आपका बराबर ध्यान है। ये एंटरप्रेन्योर्स और इन्हीं एंटरप्राइजेस का वजह से आज हम सभी के वांट्स, हम सभी के नीड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप जहाँ पे भी हैं, आपका घर में, हॉल में है, किचन में है, बेडरूम में है, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, ज़रा अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। वो सभी चीज़ों को किसी न किसी एंटरप्राइज में, किसी न किसी फर्म में मैन्युफैक्चर किया गया होगा। उसका कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर होगा। राइट नाउ योर मोबाइल, योर लैपटॉप जिसके थ्रू आप मुझे देख और सुन रहे हैं, ये भी किसी न किसी कंपनी का होगा। तो कंपनी मतलब क्या? एंटरप्राइज। उसका भी कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एंटरप्राइज नहीं होता, एंटरप्रेन्योर नहीं होता, तो आज आपके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन या ये लैपटॉप या ये कंप्यूटर कुछ नहीं होता था। आई टोल्ड यू दैट वेरेवर यू आर, यस डियर स्टूडेंट्स, अपना बात चल रहा था कि अगर ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते तो ये एंटरप्राइजेस नहीं होते, और अगर ये एंटरप्राइजेस नहीं होते तो हमारा ये जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेटिस्फाई कैसे होता था। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नीड and importance, need and importance of एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, आपको बराबर समझ में आएगा। वैसे भी ये हमारा वाइट बोर्ड है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ चांसेस आर देयर कि शायद विजिबिलिटी कम हो, वाइट बोर्ड का जो भी कुछ लिख रहा हो इतना शायद अच्छे से विजिबल ना हो, लेकिन मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ बराबर सुनाई दे रही है, उस पर ही ध्यान दीजिए आप। सो नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। माय डियर स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर जिनको हम अदर वर्ड्स में बिजनेसमैन ऐसा बोलते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स। अगर ये एंटरप्रेन्योर्स ना रहे किसी भी देश में, या ऐसे बात करें कि आज का डेट में अगर कोई भी कंट्री, इफ एनी कंट्री इज डेवलपिंग नेशन और एनी कंट्री इज डेवलप्ड नेशन, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योर्स। Yes, dear students, only because of their own entrepreneurs. Otherwise, what will happen कि अगर ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, अगर ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, तो ज़रा सोचिए कि उस कंट्री को वो गुड्स बाहर देश से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर वो गुड्स बाहर देश से इंपोर्ट करेंगे, so there will be outflow of their money. Yes or no? Means what? ये एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं जो किसी भी देश का इकोनॉमी को आगे लेके जाते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप का ही आउटकम होता है कि कोई भी कंट्री वो बैकवर्ड से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड बन जाता है। अगर आज कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री ये बैकवर्ड है, तो उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, या ऐसा बोलें वो एंटरप्रेन्योर्स का कमी है। बिकॉज ऑफ दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर national growth and social development. Most of the developing countries have the history of long years of foreign dominations. We know that about foreign dominations. Even India was also dominated by foreigners. We got our independence in the year of 1947.
But my dear students, since then and till now, whatever development you are seeing around us, or you know that earlier India was backward nation and today India is developing nation. It's only because of entrepreneurship. Otherwise, what will happen if these entrepreneurs will not come up? We will face the problem of unemployment. Due to mass unemployment, there will be mass poverty, and you know that the nation having mass level of unemployment and mass level of the poverty, वो उसका GDP, that is ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कभी भी आपको GDP ग्रोथ ये आपको फ्लरिश होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई देगा डियर स्टूडेंट्स। कहने का मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली आवर नीड्स ऑफ goods and services are satisfied, but it is beneficial for the society as a whole. Society not only gets their needs satisfied, but employment opportunities are created because of entrepreneurship. Because of entrepreneurship, new companies, new enterprises, new businesses come up, and because of that people get job directly as well as indirectly. Yes or no? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आज कोई भी नेशन बैकवर्ड है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कमी है। अगर आज कोई नेशन डेवलपिंग स्टेज में है, जैसा हमारा इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ अपकमिंग द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। और आज अगर यूके और अमेरिका, यूएसए, जापान, जर्मनी या कोई भी डेवलप नेशन का बात आप कर लो, अगर वो आज डेवलप हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उनके यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स। सो बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एनी नेशन is backward or any nation is developing and any nation is developed. My dear students, what we have started this to discuss, I told you at the beginning of my lecture that I am starting a new chapter, that is chapter number 8, small business and enterprises. तो मैंने मेरा डिस्कशन शुरू किया आज कहाँ से? वाई सीक एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का ज़रूरत क्यों? फिर मेरा सेकेंड पॉइंट जो मैंने आज डिस्कस करना शुरू किया, दैट इज़ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देन आई टोल्ड यू दैट बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, न्यू business houses, new companies, new institutes, new business firms come into existence. Employment opportunities are created. Plus poverty level comes down. Means what? Not only social benefit बट इकोनॉमिकल बेनिफिट आल्सो। फिर मैंने वो कंक्लूजन ड्रॉ किया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, कि अगर आज कोई नेशन ये बैकवर्ड है, अगर आज कोई नेशन डेवलपिंग है या आज कोई नेशन डेवलप्ड है, तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइजेस। गॉट दिस एवरीवन? यस बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसके थ्रू मैं आपको कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइज, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी मैंने फॉर्मली कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, कोई टॉपिक का स्टार्ट नहीं किया है। इट इज़ जस्ट अ
इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिर ये चैप्टर है क्या, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ। कहने का मतलब क्या है कि देश है, देश में लोग हैं, लोगों का नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स है, उनके अपने डिज़ायर्स है, वांट्स है। तो अगर देश में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, तो इनका ये नीड्स, इनका रिक्वायरमेंट्स, इनका डिज़ायर्स सेटिस्फाई का कैसे होगा? किसका नीड्स रिक्वायरमेंट्स? सिटीजन्स का। सो दैट्स व्हाई दिस एंटरप्रेन्योरशिप should come up, new that enterprises should come up and they should produce the goods and services according to needs and requirements of the citizens. Otherwise what will happen? The country will have to import goods and services from other countries. तो अपने ही देश का जो वेल्थ है वो आउटफ्लो होगा, दूसरे देश का फायदा होगा। प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द पीपल, गुड्स लोकली। मीन्स व्हाट? ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, ये हमारे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स से, ताकि लोकली, लोकल लेवल पर लोगों का वांट, लोगों का डिमांड ये सेटिस्फाई हो सके। तो प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। अब जरा सोचिए कि अगर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि गुड्स एक्सपोर्ट होगा और बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, मीन्स वी विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सो आई होप द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये आपको बराबर समझ में आ रहा है। तो बेटा ये पूरा डिस्कशन को मैंने कुछ पॉइंट तो यहाँ पे लिखा नहीं, अगर पॉइंट वाइज हम लोग समराइज करने जाएं हमारा डिस्कशन को, तो इस तरह से हम लोग समराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप द नीड्स, the requirements of the people are satisfied. Number 2, employment opportunities are created, poverty level reduces, purchasing power of the people increases. We can say that GDP growth increases, growth rate ये increase होता है. We can say that outflow of द नेशनल वेल्थ रिड्यूसेस। अब तक जो हमको इंपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता था, अब बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वो इंपोर्ट हमारा धीरे धीरे कम होने लगेगा। लोकली, अभी मैंने बोला जस्ट नाउ दैट दिस एंटरप्रेन्योर्स शुड प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि ये लोकली लोगों का नीड्स और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो। लास्ट में मैंने एक पॉइंट बोला कि एक्सपोर्ट पर्पस के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, तो वहाँ से क्या बात समझ में आ रही है? दैट आवर कंट्री विल अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस इन टुडेज लेक्चर, डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय टुडेज लेक्चर। टुडे आई स्टार्टेड द न्यू चैप्टर in your 11th business studies, that is chapter number 8, small business and enterprises. And in this, as an introductory lecture, I discussed upon these 2 points, why seek an enterprise and need and importance of entrepreneurship. कौन कौन सा पॉइंट्स मैंने कवर किया अभी जस्ट मैंने बताया आपको। आई होप आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको बराबर समझ में आया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर
we will learn about the need for एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो आज ये उसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से बराबर पॉइंट वाइज एक क्वेश्चन के रूप में आपको सिखाया जाएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड कोऑपरेशन। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड चलते चलते डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय video lectures. Enjoy yourself.